हाँ Guys, if possible, then please mute. So up to this, हम लोगों ने जितने भी बंदे connected है, up to this we completed a print function. Okay, and after that we learn ID, we learn type function. Okay, after that we learn input function. After that we learn integer, how to typecast the data. Okay, how to typecast the data. After that input means it is just used to read the data from the user, and after that how to typecast the data. After that we learn if condition, for loop, how to write the for loop, पूरा detailed में नहीं, but some introduction we completed. And after that how to install the module, वो Python MySQL connector. We just try to be familiar with this one. Okay, so इतना कुछ हमने complete किया था, and after that हम लोगों ने normal how to run the queries. So how to work with the cursor. So cursor का object सिर्फ हमने query fire करने के लिए use किया, सिर्फ objects बनाने के लिए. Sorry, cursor का object बना के function को execute function को access करने के लिए हमने सिर्फ cursor को use किया. So how to run the create database, create table. Okay, then show databases. Okay, and show tables. So some functions we learn, then insert in table and select query. So इतना हमने complete किया हुआ है. So this is the basics of the Python. Print, ID, type, input, integer, if and for, ये basics हमने complete किए, and after that MySQL connector के through, मतलब MySQL connector module को कैसे install करना है, कैसे उसको use करना है, थोड़ा सा complete किया हमने. And these are the SQL queries. तो इस SQL queries को कैसे execute करना है. Right now we are already familiar with this thing. Now guys, the next thing is मुझे यूजर से डेटा चाहिए. ठीक है. So I have one question guys, like if possible then मुझे WhatsApp कर दीजिए, मैं आपको आंसर देता हूँ उस चीज का. कुछ स्टोर टेबल का कुछ आंसर आया था. गाइज ये जो टेबल था वो डेटाबेस में ऑलरेडी इंस्टॉल्ड है. सो अगर आप उसके साथ वर्क करना चाहते हो देन MySQL पे भी आप देख सकते हो. दैट इज माय डेटाबेस. मैं उसको पहले सिलेक्ट कर रहा हूँ. सो दैट इज शो टेबल्स. ये सेम क्वेरीज हमने पाइथन के थ्रू भी रन किया था. नाउ select star from, that is the concept, select star from test. Okay, so यहाँ पे भी हम लोग को डेटा मिल जाएगा. So that's a permanently stored. Okay, that was permanently stored. So now guys, next thing is मुझे यूजर से डेटा लेके इंसर्ट करना है. मुझे इस तरीके से लाइक फिक्स डमी डेटा मुझे इंसर्ट नहीं करना. I want to fetch some data from the user और मुझे डेटाबेस में इंसर्ट करना है. So मैं सबके सब स्टेप्स में एक बार रिपीट कर देता हूँ तो थोड़ा फ्रेश हो जाए हमारे लिए. फर्स्ट आई वांट टू रीड द डेटा फ्रॉम यूजर. मुझे फर्स्ट ऑफ ऑल आई वांट टू जस्ट इंपोर्ट द मॉड्यूल. फॉर दैट वी हैव टू जस्ट राइट डाउन इंपोर्ट mysql.connector as db. Okay, so that's the first step. मैंने सिर्फ डेटाबेस मॉड्यूल को, लाइब्रेरी को इंपोर्ट किया. Now after that मुझे डेटाबेस के साथ कनेक्टिविटी करनी है. So for that db.connect, inside that we have to pass some argument. The first one is localhost in the sense IP address. So that is a localhost for me. After that we have to pass some credentials. That is user, that's a root in my system. And बाकी सब कनेक्ट हो रहे हैं. तब तक हम लोग एक बॉयलर प्लेट कोड वापस कर लेंगे. That's the password. And in my system, okay, we already create a database. That's nothing but a online underscore db1. That's our database name. और इसका जो आंसर आ रहा है उसको मैं कहीं पे स्टोर कर रहा हूँ. That's a form. So that is just used to connect with the database. Now मुझे insert query fire करनी है. So for that I need a cursor object. So phone dot cursor. अब मुझे यूजर से कुछ डेटा फेच करना था. तो एज वी नो हमारे पास 3 कॉलम्स थे. सो मैं 3 चीजें यूजर से ले रहा हूँ. द फर्स्ट थिंग इज ए ID and it must be the type of integer. So now we familiar with this input function also. Enter ID. Now I want to get a name of that guy. So for the name, actually I need a string type of data. तो मैं उसको typecast नहीं कर रहा. Let me just print a message. Enter name. Now enter password. Okay, so मेरे पास 3 डेटा अभी इनपुट हो चुके हैं. Now I want to just make a query. So for that, insert into, then table name is test. So let me just provide the column name. So ID, that was actually a name.
अगर रेफरेंस चाहिए तो हम लोग लास्ट वाला प्रोग्राम भी एक बार देख सकते हैं. Here it is. So that's a name and password. Okay, that's a name and password. So here it is. ठीक है, and after that the values is there. एंड इस वैल्यूज के बाद गाइस हम लोग को क्या लिखना था. वी हैव टू जस्ट प्रोवाइड अ वैल्यू नेम, मतलब सबके सब वैल्यूज प्रोवाइड करने थे. आफ्टर दिस वैल्यूज कीवर्ड वी हैव टू प्रोवाइड डेटा एक्चुअली. सो राइट नाउ मेरे पास ये सब वेरिएबल्स है. सो व्हाट आई विल डू, मैं इन वेरिएबल्स को कॉन्केट करने के लिए मुझे कुछ ऐसा लिखना पड़ेगा प्लस ए. जैसे हम लोगों ने इनपुट के एग्जांपल में देखा था कि अगर आपके पास दो स्ट्रिंग है तो अगर आप उसको कॉन्केट करना चाहते हो देन यू हैव टू जस्ट यूज अ प्लस ओवर देयर. बट गाइस दिस इज एक्चुअली इंटीजर. This is actually integer, so it makes an issue. So right now let me just go through that. मैं उसको string में consider कर लेता हूँ. Yes, that is an integer in a data type also, but let me just consider it as a string right now. Okay, and if you want to just add a string type of data, you have to use a single quotation to grab that string. Okay, so मैं इसको wrap नहीं कर रहा सिर्फ single quotation में, but that's a string. अगर आप इसको directly as a database को provide करोगे string भी numerical format में, जैसे numerical format मतलब मैं यहाँ पे लिखूंगा 4. So according to Python that is string because मैंने उसको टाइप पास नहीं किया. तो इनपुट फंक्शन उसको स्ट्रिंग में कंसीडर करेगा. बट अगर मैं इसको सिंगल कोटेशन में wrap नहीं करता, सिंगल कोटेशन में कवर अप नहीं करता, then what database will understand, it will consider that one as an integer type of data or numerical type of data. So do not worry about that a. Okay, now a के बाद मुझे क्या चाहिए. So पुराने प्रोग्राम में हमने क्या लिखा था, after this numerical data we want to put the comma. Okay, मैं एक बार नॉर्मल लिख देता हूँ. So you will get an idea. Actually मुझे ऐसा कुछ चाहिए था, a then b then c. That's a query. But मुझे a b c नहीं चाहिए. मैं क्वेरी को रन करने से पहले सिर्फ प्रिंट करने की ट्राई करता हूँ. So let me print this bb underscore insert q.py. मैं सिर्फ क्वेरी को प्रिंट कर रहा हूँ. Okay, so here it is. Insert. Sorry, not this one. q.py. So guys मैं id लिख रहा हूँ 100, name is सूरत, password is गुजरात. So this is my query. Actually query क्या होनी चाहिए थी. Actually हमारे पास query क्या होनी चाहिए, वैल्यूज के बाद यहाँ पे हमने जो इनपुट किया वो डेटा आना चाहिए था. बट यहाँ पे abc आया. Why? Because that's a variable, but हमने उसको डबल कोटेशन के अंदर लिखा हुआ. So अगर आपको वैल्यू वेरिएबल्स की वैल्यू चाहिए then just use the plus to concat them. Okay, so मैंने यहाँ पे प्लस लिखा और a को बाहर लिख दिया, सिर्फ a को. Let me check. Answer 2. Here I have 3 different data. So right now 100 is there. Okay, तो मुझे 100 मिल चुका. So in the same way मुझे b और c का भी डेटा चाहिए. So what we will do, मैं यहाँ पे b के जस्ट पहले डबल कोटेशन and then प्लस लिख दूंगा, b के बाद प्लस and डबल कोटेशन. So it just return the data of b. Okay, और b का डेटा हो जाएगा. In short, it's just used to this way. It's just used to concat the variable with the fixed string data. Okay, so same thing I will do with the c. Okay, so अगर मैं डायरेक्ट लिखता then it will be maybe it will be complicated for you. So now let me run this and data put करते हैं. So here we have values 100 सूरत and गुजरात. But guys, as we know, ये जो सूरत and गुजरात है, as per the database, it must be wrapped in a single quotation. वो सिंगल कोटेशन के अंदर wrapped होने चाहिए. कौन कौन सी चीजें, सूरत and गुजरात. So ये सूरत मतलब ये b, तो उसके आगे मुझे सिंगल कोटेशन लिखना है. तो डबल कोटेशन से पहले सिंगल कोटेशन स्टार्ट किया. Yeah, just observe this. डबल कोटेशन से पहले सिंगल कोटेशन स्टार्ट किया, and after this डबल कोटेशन मैंने सिंगल कोटेशन कंप्लीट किया. ओके, मैं सी के लिए ऐसा कुछ नहीं कर रहा, मैं तो जस्ट चेक, मैं क्रॉस वेरीफाई कर रहा हूँ. हियर आई हैव डेटा एंड ओके दैट्स डन. सो हियर वी हैव. तो जो हमारा एक्सपेक्टेशन था वो हम लोग को मिल चुका है. आई वांट टू डू द सेम थिंग फॉर गुजरात आल्सो. ओके, मुझे ये सेम चीज गुजरात के लिए भी करना है. मींस फॉर द सी आल्सो आई वांट टू परफॉर्म द सेम थिंग. So before the double quotation put the single quotation and after double quotation put the single quotation. So that's that. So that's my query. मैंने पहले इसलिए ये नहीं बताया था because it's look little bit of complicated. Okay, so now let me run this program and enter the data. 100 Surat Gujarat. That's it. That's my query. Insert into test, ID, name and password, values, and this is the valid values as per the SQL. Okay, as per the database. Now I want to run this. So for that, what we will do, I have a cursor object. मैं already cursor का object बना चुका हूँ. Now if you want to, I do not want to print the query. अगर आप इसको run करना चाहते हो, then we have a function that is execute. Just pass the q as an argument and just write down con.commit. Okay, it's just used to save this. Okay, now let me run this. So 100 Surat and Gujarat. That's it. Now वो select वाला program run करते हैं. So db_select. So guys, गलती से मैं एक insert वाला query once again run कर चुका था, insert 1.
तो एक डुप्लीकेट रिकॉर्ड हमको मिलेगा. सो हियर इट इज. ये एक डुप्लीकेट हुआ था, बट जस्ट इग्नोर दैट. हम लोग को एक्चुअली ये चेक करना था कि हाँ भाई 100 सूरत एंड गुजरात इंसर्ट हुआ कि नहीं. हियर इट इज. जो हमने इनपुट किया था वो डेटा सक्सेसफुली इंसर्ट हुआ कि नहीं. सो दैट्स इट. Successfully it is inserted. And if you do not want to work with this complicated concept, अगर ऐसा complicated आपको नहीं लिखना है, okay, तो मैं इसके एक सिंपल सॉल्यूशन बता देता हूँ. That's insert3.py. Okay, so इस क्वेरी को थोड़ा इजी करते हैं हम लोग. अगर आपको कॉम्प्लिकेटेड नहीं चाहिए, then you can do one thing. आप सिंपल ऐसा लिख सकते हो, q is equals to insert into test and your column name, so id, name and password, then values, and just write down percentage s. How many values you want to set? 3. Then just write down 3 times. Just write down percentage also. Okay, 3 बार percentage s लिख दीजिए. That's it. And guys, आपको percentage s की values provide करनी पड़ेगी. So do one thing. Okay, do one thing. जब आप query execute करो, at that time use one more parenthesis. यहाँ पे एक और parenthesis ऐड करिए, and आप जो भी sequence, ये पहले percentage इसमें कौन सी value चाहिए थी, I want to replace that percentages by a. Second percentage s I want to replace by b, and third percentage s I want to replace by c. ठीक है, तो पाइथन ने एक सिंपल ऑप्शन हमको प्रोवाइड किया था. यू कैन डू दिस. आप ऐसा भी कुछ लिख सकते हो. अगर आप ये कॉम्प्लिकेटेड क्वेरी यूज नहीं करना चाहते, then just use percentages in the place of variables, and in future उसकी वैल्यूज प्रोवाइड कर दीजिए by at the time of execution. Okay, जब आप एग्जीक्यूट करो तब उसको पास कर दीजिए. So that's db insert3. My program name is db insert3.py. So मैं कुछ और डेटा ऐड कर रहा हूँ. That is 101 Ahmedabad and Gujarat. So now I want to just go with that select on the check that is inserted on. Yeah, here it is. So that's successfully inserted. So we have two different ways to insert the data actually. Okay, we have two different ways to insert the data. Either you can go with this concatenation of the string, and otherwise you can use this latest option. Okay. So now guys, the last thing is मुझे data चाहिए. So मुझे hack करना है. ठीक है, मुझे data को hack करना है. So for that I will just copy this thing. मैं एक नया program create कर रहा हूँ. ओके, एंड उसके अंदर मुझे सिर्फ यूजर का नाम और पासवर्ड चाहिए. मतलब मुझे एक्चुअली लॉगिन करवाना था. ओके, मुझे किसी बंदे को लॉगिन करवाना था. सो माय क्वेरी विल बी, दैट क्वेरी कुछ इस तरीके से होगा. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, आई एम नॉट वरीड अबाउट क्या क्या कॉलम्स मुझे मिल रहे. सिलेक्ट स्टार फ्रॉम, व्हाट इज योर टेबल नेम? दैट्स अ टेस्ट. ओके, सो सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट वेयर नेम इज इक्वल्स टू, तो मुझे नाम सेट करना है. दैट्स ए, एंड पासवर्ड इज इक्वल्स टू बी. ओके, बट मुझे अब ये ए और बी का वैल्यू सेट करना था, तो हम लोग क्या लिखेंगे? लेट मी जस्ट लॉगिन 1 ओके, तो मुझे ए और बी की जगह पे क्या लिखना है? मुझे अगर पुराना ऑप्शन यूज करना हो तो लेटेस्ट ऑप्शन आई डू नॉट वांट टू यूज. वो जो अपने ये क्वेरी को कॉन्केट किया था, आई वांट टू यूज दिस ऑप्शन. ओके, सो व्हाट आई विल डू, सिंगल डबल प्लस, हियर आई विल डू प्लस डबल सिंगल. सो दैट्स ए इज ए स्ट्रिंग टाइप ऑफ डेटा, तो मैंने सिंगल कोटेशन भी यूज किया. नाउ द सेम थिंग आई हैव टू यूज ओवर हियर, and that is single double plus, and here I have to use sorry, after the equal to. Okay. Here we have to use plus single double. Okay, so that's it. So मैं एक बार query को print करके verify करना चाहता हूँ. That's perfect. Okay, ये सक्सेस, मतलब query एकदम perfect बना है कि नहीं. So let me run this. So that's db underscore login. So मैं नाम input कर दूँगा सूरत. So that's a wrong name, but it's okay. प्रिंट फंक्शन हमने नहीं लिखा. ओके, मैंने सेव नहीं किया था. सूरत एंड गुजरात. सो हियर इट इज, सिलेक्ट स्टार फ्रॉम टेस्ट वेयर नेम इज इक्वल्स टू सूरत एंड पासवर्ड इक्वल्स टू गुजरात. ओके, दैट्स इट. सो नाउ आई वांट टू चेक कि वो डेटा सक्सेसफुली, मतलब मुझे यहाँ से क्वेरी सक्सेसफुली रन हुई तो यस और नो मिलना चाहिए. तो मुझे सिर्फ यूजर को मैसेज करना है कि वेलकम टू माय लॉग, लाइक वेलकम टू माय सिस्टम. अदरवाइज आई वांट टू जस्ट से आईडी एंड पासवर्ड डज नॉट मैच. सो फॉर दैट क्वेरी एग्जीक्यूट करनी है. सो वी सिंपली राइट डाउन okay, cur.execute in the bracket q. Now मैं ऐसा मान के चलता हूँ कि जो ये a था, that's a primary key, sorry, मतलब जो नेम कॉलम था उसमें प्राइमरी की, मतलब डुप्लीकेट्स उसमें नहीं है. एक्चुअली इन आवर डेटा देयर इज अ डुप्लीकेट, बट मान के चलते कि डुप्लीकेट नहीं है, तो मुझे एक सिंगल रिकॉर्ड रिटर्न में मिलेगा. सो आई विल जस्ट राइट डाउन फेच ऑल की जगह में लिखूंगा फेच 1. ओके, एंड ये मुझे रिजल्ट देगा. सो आई वांट टू जस्ट प्रिंट द रिजल्ट. मुझे पूरा सबका सब टेबल नहीं चाहिए, एक ही बंदे की डिटेल्स चाहिए. आई वांट टू जस्ट प्रिंट दैट. मैं लूपिंग यूज नहीं कर रहा. सो लेट मी जस्ट राइट डाउन सूरत एंड गुजरात. सो द डेटा इज देयर. नाउ लेट मी एंटर सम like ऐसा कुछ डेटा इंसर्ट करके दैट इज नॉट एग्जिस्ट इन अ डेटाबेस. आई वांट टू जस्ट राइट डाउन गुजरात 1. मैं पासवर्ड रॉन्ग इनपुट कर रहा हूं, सो द रिटर्न इज नन.
ओके लेट मी एंटर आईडी रॉन्ग एंटर कर रहा हूँ, सो द रिटर्न इज नन। मतलब जहाँ आईडी और पासवर्ड मिसमैच होगा वहां पे आरएसटी की वैल्यू हमको नन मिलेगी। सो वी कैन सिंपली राइट डाउन कि इफ द रिटर्न इज नन, if the return is none, then we can simply say that id and password does not match. Okay, we can simply say that id and password does not match, else you can say that welcome. Okay, so let me run once again. So that's that Surat and Gujarat. So the message is there, welcome. Now Surat 1 and Gujarat. So the message is there, that is id and password does not match, and maybe sorry, that was by mistake. आईडी प्रॉपर इनपुट कर रहा हूँ एंड पासवर्ड में रॉन्ग इनपुट कर, सॉरी लॉगिन 1 आईडी प्रॉपर इनपुट कर रहा हूँ, पासवर्ड रॉन्ग इनपुट कर रहा हूँ, सो दैट आईडी एंड पासवर्ड डज नॉट मैच। मींस गाइस आई हैव एन आइडिया अबाउट दैट आईडी, मुझे आईडी पता है, ओके मुझे आईडी पता था, दैट इज सूरत, पासवर्ड मुझे नहीं पता, सो आई वांट टू जस्ट राइट डाउन कुछ भी, बट स्टिल आई वांट टू एंटर दिस सिस्टम, सो आई वांट टू हैक दिस, so let me just hack this। so मुझे आईडी पता था, मुझे आईडी पता था, तो मेरा सिंटेक्स देखो मैं किस तरीके से इनपुट कर रहा हूँ, ठीक है। मैं ये क्या लिख रहा हूँ मैं बाद में आपको समझाता हूँ, पासवर्ड मुझे नहीं पता, सो आई विल जस्ट राइट डाउन कुछ भी। ओह द वेलकम इज देयर, वेलकम मतलब उसने इस आईडी के अंदर मुझे लॉगिन करना अलाउ कर दिया, so that's the hacking, that's the SQL injection actually। okay, so what is SQL injection, what is SQL injection? SQL injection means कुछ 1 minute, so if you want to add some more query in an existing query, if you want to inject, means insert an SQL code in an existing SQL query, so that is actually known as SQL injection। तो मैंने कुछ क्या किया यहाँ पे, मुझे आईडी पता था बंदे का, I just add one more code, that is a code actually, ठीक है, that is an SQL code, मैंने कुछ extra SQL code add किया, I have no idea about the password, still I just entered in that system, मुझे वेलकम का मैसेज मिल गया, सो आई वांट टू जस्ट लर्न दिस कि ये क्या चीज है। सो गाइस मेरे पास एक फाइल ऑलरेडी बनी हुई है, so इसको हम फॉलो करते हैं। तो सबसे पहली चीज, ओके यहाँ ये एक सेशन में हम लोगों ने आईडी की, सॉरी यूजर नेम की जगह ईमेल यूज किया था, जस्ट इग्नोर दैट। ओके मैं नया बना देता हूँ। सो व्हाट वाज द क्वेरी, हमारा क्वेरी क्या था, मैं एक नया आपको फाइल समझा देता हूँ कि एसक्यूएल इंजेक्शन कैसे वर्क करना है। सो दैट इज एक्चुअली द क्वेरी, ओके ये मेरा क्वेरी था, दैट इज एक्चुअली द क्वेरी। हमने कुछ इस तरीके से क्वेरी लिखा था, select star from test where name equals to this a and password is equals to b, and before that मैंने a और b की वैल्यू गेट की by using the statements a equals to something and b equals to something। so अब यहाँ पे मैं इनपुट क्या कर रहा हूँ, this was existing actually, तो मेरा इनपुट क्या था, my input is मुझे a की जगह लिखना था सूरत and my password is actually गुजरात, और मैंने कुछ भी लिखा, that's it। Then what will happen, ये अगर हमने इनपुट किया सूरत एंड कुछ भी, तो ये दोनों हमने इनपुट किसमें किया हुआ है, दैट इज एक्चुअली इनपुटेड इन ए एंड बी। देन आफ्टर दिस इनपुट आपका क्वेरी क्या होगा गाइस, कैन यू प्लीज टेल मी व्हाट विल बी योर क्वेरी। ओके रिप्लाई मत करना क्योंकि वरना नॉइज हो जाएगा। सो व्हाट विल बी योर क्वेरी, ए की जगह पे क्या आ जाएगा, सूरत, ए की जगह पे सूरत मींस दिस डबल कोटेशन प्लस प्लस दैट विल बी रिप्लेस्ड बाय दिस सूरत, एंड व्हाट अबाउट दिस बी, वो रिप्लेस हो जाएगा कुछ भी से, so something like that, this will be replaced by kuch bhi। so this will be my query, select star from test where name is equals to Surat and password is kuch bhi, okay। so that is actually wrong। so what is the task of this end का कामकाज क्या होता है, as we all know if both the condition are true, end से पहले एक कंडीशन लिखा हुआ है, end के बाद एक कंडीशन लिखा हुआ है, if both the conditions are true then it will work। so सूरत नाम का बंदा अपने पास है, yes, what is the password, गुजरात, okay, what is the password, that is गुजरात, बट हमने पासवर्ड क्या चेक करवाया, कुछ भी, तो इट रिटर्न्स नन कि भाई ये नहीं काम करेगा, हमारे पास ऐसा कोई पासवर्ड वाला बंदा नहीं। बट अब हैकर ने क्या किया, जिसने एसक्यूएल इंजेक्शन डेवलप किया था उसने क्या किया, सर मुझे पासवर्ड नहीं पता, दैट मींस मुझे ये वाला पोर्शन चेक ही नहीं करवाना। देन एसक्यूएल में एक ऑप्शन है, अगर आप यहाँ पे और ऐड कर दो, और के बाद कुछ कंडीशन ऐड कर दो, देन अगर आपका पहला कंडीशन ट्रू है, और का कामकाज क्या होता है, इफ द फर्स्ट कंडीशन इज ट्रू देन इट विल नॉट चेक द नेक्स्ट वन, वो सेकंड कंडीशन चेक नहीं करता, ओके। तो अगर मैं ऐसा कुछ यहाँ पे इंसर्ट कर पाया देन माय वर्क विल बी डन। सो कैन आई डू वन थिंग, ये जो इनपुट था ना, ये इनपुट में मैं ऐसा कुछ इनपुट करूँ तो सूरत और देन व्हाट विल हैपन, व्हाट इज योर क्वेरी, सर दिस वन इज अ क्वेरी, ऐसा कुछ क्वेरी था जिसमें हमने सूरत और कुछ भी इनपुट कर दिया था,
सो अब सूरत की जगह पे साथ साथ में क्या इनपुट हो जाएगा, और सर ऐसा नहीं चाहिए था, ऐसा नहीं चाहिए था, ये सिंगल कोटेशन खत्म हो जाना चाहिए, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, मतलब ये और सिंगल कोटेशन से बाहर आ जाना चाहिए, अदरवाइज व्हाट विल हैपन, द होल थिंग विल बी कंसीडर्ड एज ए नेम, the whole thing will be considered as a username. Okay, so मुझे इस सिंगल कोटेशन को यहाँ कंप्लीट कर देना है. Then can we do one thing, मैं पूरी चीज को कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ गाइस. कैन वी डू वन थिंग, मैं यहाँ पे एक और चीज कर सकता हूँ, सूरत के बाद सिंगल कोटेशन ऐड कर सकता हूँ. सो नाउ व्हाट इज माय इनपुट, दैट इज सूरत सिंगल कोटेशन और, सो दैट विल बी इनपुटेड हियर, सूरत सिंगल कोटेशन देन और समथिंग लाइक दैट. सो दैट इज ओके, बट अब और के बाद एक और कंडीशन आनी चाहिए. ओके, सो लेट मी डू वन मोर थिंग, let me do one more thing, मैं एक और काम काज कर देता हूँ. let me take a next step, कि और के बाद आपको कंडीशन चाहिए ना, एंड कैन यू प्लीज टेल मी और के बाद वाला कंडीशन चेक होगा? नहीं सर, अगर और के पहले वाला कंडीशन ट्रू है देन और के बाद वाला कंडीशन चेक नहीं होगा. देन यू कैन राइट डाउन एनीथिंग लाइक 1 equal to 0. okay, now what will happen, this data will be inserted in this single quotation. ये सिंगल कोटेशन की जगह पे, ये जो सिंगल कोटेशन के अंदर ये डेटा पूरा इंसर्ट हो जाएगा, समथिंग लाइक दैट. सो इस तरीके से कुछ हो जाएगा. बट नाउ गाइस, ये तो कंप्लीटली ट्रू है, यहाँ तक सिंटेक्स एकदम वैलिड है, नेम इक्वल टू सूरत और, बट ये कुछ प्रॉब्लम जनरेट करेगा. दैट इज द सिंटेक्स एरर. व्हाट इज द सिंटेक्स एरर? सर एक सिंगल कोटेशन का कोई मतलब नहीं है, या तो दोनों साइड सिंगल कोटेशन है. ओके, तो लेट मी डू वन मोर थिंग, इसको वंस अगेन कॉपी पेस्ट करते हैं, एंड मुझे ये जीरो के आगे भी सिंगल कोटेशन चाहिए. लेट मी ऐड ए सिंगल कोटेशन ओवर हियर, सो दैट विल बी ऑटोमेटिकली इंसर्टेड हियर. सर बट ये न्यूमेरिक डेटा हुआ, ये स्ट्रिंग टाइप का डेटा हुआ, ये कैसे चलेगा? इस तरीके से कंपेयर थोड़ी होगा. ठीक है, लेट मी डू वन मोर थिंग. सो ये 1 के आगे पीछे भी मैं सिंगल कोटेशन कर रहा हूँ गाइस, सो दैट विल बी इंसर्टेड ओवर हियर. ओके, सो नाउ इट लुक्स अ प्रॉपर वन. So what will be the query? Select star from test where name equal to Surat, that's a valid ID or valid username, and okay, after that or is there. So अगर ये valid है, if it is true, then this thing will not be checked. ये check होगा ही. Okay, so इसको भी मैं save कर देता हूँ like steps.txt. So ये भी आपको साथ में forward कर दूंगा, तो आपको in future reference के लिए चाहिए कि किस हिसाब से data insert हुआ था, you can just go through. So guys, मुझे insert क्या करना था? This thing, this will be my input. So let me insert that thing. क्या इनपुट करना था? So I want to just input Surat, then a single quotation. Surat क्यों? Because it's a username. Okay, after that or, okay, after that single quotation, one single quotation, one single quotation equal to single quotation 0. Password I have no idea. Let me write down India. Oh, still welcome is there. So that's an SQL injection. आई थिंक आपको समझ में आया कि कैसे मैंने यहाँ पे फॉर्मेशन किया हुआ है उसका. डायरेक्टली अगर इसको लर्न करने जाओगे इट्स अ टिपिकल वन, सो स्टेप बाय स्टेप जाओगे, सो यू विल गेट अ बेटर आइडिया. सो आई होप ये समझ में आया. नाउ हाउ टू, दैट इज एक्चुअली अ स्किल इंजेक्शन. नाउ हाउ टू स्टॉप दिस, तो मैं इसका लेटेस्ट वर्जन यूज कर रहा हूँ. एक्चुअली दैट इज इनबिल्ट, हमको कुछ मेहनत करने की जरूरत नहीं है. सो व्हाट इज द लेटेस्ट वर्जन? अब इस क्वेरी को लेटेस्टली कैसे लिखना चाहते थे? समथिंग लाइक दिस, %s एंड पासवर्ड इज इक्वल टू %. एक्चुअली ये लेटेस्ट वर्जन नहीं है, दोनों एक साथ ही डिक्लेयर हुआ था. एक्चुअली दिस इज नॉन एज प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट फॉर्मेट. ओके, दैट इज एक्चुअली नॉन एज लाइक प्रिपेयर्ड, या दैट्स अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट फॉर्मेट. यस, दैट इज अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट. जैसे आप %s लिख रहे हो, दैट्स अ प्रिपेयर्ड स्टेटमेंट फॉर्मेट. सो मुझे ये डेटा पास ऑन करना हो तो मुझे क्या लिखना है गाइस यहाँ पे? और जस्ट राइट डाउन a and b बिकॉज़ यहाँ मुझे यूजर का नाम पास करना था. हियर आई वांट टू पास ए पासवर्ड. सो नाउ लेट मी रन. सो लॉगिन 1, पहले मैं वैलिड डेटा चेक करूंगा, जो भी मेरे पास आईडी एंड पासवर्ड है. इट्स वर्किंग. लेट मी जस्ट राइट डाउन सूरत 1, सूरत एंड गुजरात 1. इट्स नॉट वर्किंग. नाउ लेट मी ट्राई टू हैक दिस. सो दैट वाज आवर एक्जिस्टिंग डेटा एंड पासवर्ड. So it's not work. Okay, the spelling mistake is there in this, but it doesn't matter. Okay, so it's not work. So SQL injection अगर आपको अपने सिस्टम में नहीं चाहिए, then just go through this one. Okay, ये syntax use करिए, that's better. Okay, so we have both the syntax, but this one is hackable, जिसमें हमने concatenation use किया, and this is not hackable. Okay, so in future, मतलब in short I want to just say कि अगर आप कोई भी लैंग्वेज, पाइथन, जावा, .NET कुछ भी यूज करें, तो हो सके तब तक पूरा मॉड्यूल्स लर्न करें. ऐसा मत करिए कि आपका ओके यहाँ पे मेरा टास्क हो रहा है, देन नेक्स्ट ऑप्शन लर्निंग क्यों करो. हो सकता है कि उसमें कुछ और limitations हो. So that's that guys. So I hope all of you enjoyed the session, and now if you have a query then you can ask.
एंड गाइस दिस इज द वेबसाइट, यहाँ से आपको पूरा डेटा मिल जाएगा govardhaninstitute.com। एंड ये चैनल के ऊपर मैं लोड कर दूंगा ये डेटा अप टू टुमारो इवनिंग, ठीक है, ये पूरे वीडियोस में यहाँ पे लोड कर दूंगा। And this is my WhatsApp number. If you have any further in future also, if you will get some any error or problems, you can just text me on this number. Okay. Thank you so much, sir. Thank you. Thank you, Mr. Sumit sir, for joining us in the seminar and providing us the valuable knowledge about Python and all the languages, how we connect and injection, SQL injection queries. And also thanks everyone else who are participants in the webinar. Thank you so much, all of you. Thank you, sir. Thank you, guys. Still, मैं 1 minute के लिए wait कर रहा हूँ. If you have a problem, then you can ask right now. Anyone have a question? Yeah. So should I complete the session, guys? Yes, sir. Yes. Okay. Thank you, sir. Okay. Goodbye, guys. Thank you, sir. Bye bye. Thank you, sir.